Hello, dear students. I hope you all are doing well. So, the much awaited text Tughlaq by Girish Karnad is here after so many requests from you. So, get up your lines and fasten your belts to study Girish Karnad's Tughlaq from all the angles, all the possible angles. So, this is a play that was written in 1964 and it was originally written in Kannada language by Girish Karnad. He is the man who's on your screen, a very famous personality. He has been an actor, director, screenplay writer, script writer, an artist, a writer, a dramatist. So, in short, a very well known personality of India who passed away just recently. So, he has written when he was thinking of that what he should write on. He was going through the books of history, and ultimately he said it in one of his interviews that he saw the image of Muhammad bin Tughlaq being piled up, being emerging in front of him. And when he wrote this, existentialism was there in the air. So it was all over the literary scenario. It was in full swing when he took a subject matter from history and he gave it a touch of existentialism. So the play is open ended, the play is historical, the play is an allegory, the play is a depiction of Nehruvian era. So it's all in all. So the most important details that you should know about it has 13 scenes. So it's a play in 13 scenes. The play is set in the reign of, so कब की है इसकी setting? It's set in the reign of Muhammad bin Tughlaq. And who is he? Everybody knows that he's known as Mad Muhammad. So first of all, it was staged in Urdu in 1966 as a student production at National School of Drama. The most famous staged performance was at Purana Killa, Delhi, 1972, and in 1970 it was enacted in English in Mumbai. So before we actually move further, it's important to know one of the very important quotes that you can use in your answers. So it's a 13 scene play based on Turco-Indian ruler Muhammad bin Tughlaq. It's a historical play as well as commentary on the contemporary politics. So the Times of India comments that in the play, the protagonist Tughlaq is portrayed as having great ideas and grand vision, but his reign was an abject failure. And why so? Because he started parallel to the Nehruvian era. He started with high idealism but ended in abject failure. Why so? Because he he thought of some drastic changes in the kingdom which were not practical. So जब आप practical की बजाय आप ऊट पटांग decisions लोगे जो लोगों के हित में नहीं है, definitely you are going to be a failure. So that has happened with him. कौन कौन से करेक्टर्स हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं पेपर में जिनको जानना आपके लिए जरूरी है? मोहम्मद बिन तुगलक, हिज स्टेप मदर अजीज, आजम, नाजिब, बरानी, शेख इमामुद्दीन, शिहाबुद्दीन, शेख शमसुद्दीन. ये होली मैन है और लास्ट ईयर इन पे क्वेश्चन भी आया था, कमेंट ऑन द होली मैन, ओल्ड मैन इन द प्ले. तो जो भी ओल्ड मैन या होली मैन है, दे ऑलवेज stand for wisdom. They always stand for spiritual side of the life. So it's very important to keep this in mind that all the old people, old man, old elderly people, they stand for worldly wisdom as well as spirituality, you can say. We have Ratan Singh and Ghyasuddin Abbasid. So here is the character map of Tughlaq that is prepared by me only. So Tughlaq is a play by Girish Karnad and I'm here to narrate the story. So the main plot, why I have made it like this, there is a reason behind it so that you might keep everything in your mind, आपके दिमाग में हर चीज रह जाए. ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, ये सारे कैरेक्टर्स ये हिस्टोरिकल हैं, ये हिस्ट्री में थे, एग्जिस्ट कर रहे थे. बट ये जो कैरेक्टर हैं दोनों, ये गिरीश कर्नाड की
दिमाग की पैदाइश है, राइट। ये इस प्ले को एग्जिस्टेंशियलिस्ट फ्लेवर देने के लिए ऐड किए गए हैं। सो मोहम्मद बिन तुगलक स्टेप मदर है, नाजिब है, बरानी है, नाजिब वजीर है, बरानी हिस्टोरियन है, जैसे पुराने समय में होता था। इम्पोर्टेंटली किंग्स जो थे वो एक हिस्टोरियन को अपने राज में रखते थे, जो उनके बारे में व्याख्यान करते थे, बड़ा बढ़ा के बोलते थे, बताते थे सब। और घियासुद्दीन अब्बासिद, और दूसरी साइड शेख इमामुद्दीन जो स्पिरिचुअल लीडर भी हैं और क्रिटिक हैं इसकी हर एक उल्टी सीधी हरकत के। आयनुल मुल्क, शहाबुद्दीन, रतन सिंह, ये लोग भी इसको मारना चाहते हैं। आयनुल मुल्क इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन अभी जब प्ले शुरू होता है तो वो आर्मी लेके 30,000 की आर्मी लेके इसको मारने, इसके ऊपर अटैक करने आ रहा है। लेकिन कैसे ये 6,000 सोल्जर्स के साथ अपने दिमाग चला के अपने दिमाग की क्राफ्ट के साथ उसको हरा देता है और शेख इमामुद्दीन को भी अपने रास्ते से हटा देता है। तो दैट्स वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूरा प्ले किस पे बेस्ड है? दो मेजर ड्रास्टिक डिसीजंस वो लेता है। एक है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल डिसीजन है। कहाँ दिल्ली नॉर्थ में, कहाँ दौलताबाद अभी का दियोगरी साउथ में, तो इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट उसने वो किया और उसी वजह से ही हैड टू सफर, हिज किंगडम हैड टू सफर, हिज रूल, हिज रीन हैड टू सफर। और एक और बहुत ही ड्रास्टिक डिसीजन था, दैट वाज about giving equal value to the silver coins, gold coins as well as copper coins। जब आप ये कह दो कि कॉपर के कॉइन और गोल्ड के कॉइन की कीमत सेम है, तो लोगों ने क्या करना था? लोग सारे कॉपर कॉइन देके घर पे बना बना के इसके गोल्ड कॉइन ले गए। तो these were the two major drastic decisions which actually resulted in failure of his kingdom. So coming back to the play again, as the play opens, what we can see, the readers are introduced to his court is introduced here. So first of all we see a court scene। क्या हो रहा है उसमें? तुगलक डिक्लेयर करता है that he is shifting his capital from Delhi to दौलताबाद। दौलताबाद साउथ में है और इसके लिए रीजन क्या देता है कि सदर्न पार्ट में रूल करने के लिए अच्छे से ये डिसीजन जरूरी है। और दूसरा, दौलताबाद इज अ हिंदू सिटी, वहां पे अगर शिफ्ट होगा सब कुछ तो एक तो बाहर वाले अटैक से बच जाएगा कंट्री, कोई फॉरेन का अटैक नहीं होगा, काफी दूर रहेगी कैपिटल, यहाँ बॉर्डर के पास है दिल्ली। तो दूसरा वो कहता है कि वो एक हिंदू सिटी है एंड इट इज गोइंग टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो इस कंटेक्स्ट में, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट इट इज अ हिस्टोरिकल प्ले, तो प्रोफेसर आशा कुथरी चौधरी, then of Guwahati University at Guwahati, has said that Tughlaq is based on the life and story of Muhammad bin Tughlaq, the most controversial ruler of Delhi Sultanate. Tughlaq is defined as a historical play because the chief protagonist is a character taken from history। क्योंकि character history में से लिया गया है तो definitely ये एक historical play है। अब जब हम ये कोर्ट सीन की बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक डिक्लेयर कर रहा है कि उसके लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से दिल्ली से दौलताबाद जाएंगे। इतने में जो माइनर नहीं कह सकते हम, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, अजीज एंड आजम, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। अब अजीज कोर्ट में आता है। अजीज हैज चेंज्ड हिज आइडेंटिटी फ्रॉम मुस्लिम टू हिंदू, और यहाँ पे तुगलक जो है वो अपने सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता है, धर्म निरपेक्षता के लिए जाना जाता है। तो चाहे वो मुस्लिम सल्तनत का राजा है, मुस्लिम सुल्तान है, फिर भी वो एक आइडलिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है। ही डिजायर्स टू बी सीन एज एन आइडलिस्ट हु वांट्स यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन वो ये नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम उसको काफिर कहते थे कि ये अपनी कौम को छोड़ के दूसरों को फेवर कर रहा है, और हिंदू उसने कभी उस पर विश्वास ही नहीं किया कि हाउ इज इट पॉसिबल, एक मुस्लिम हमारे को इतना फेवर दे कैसे सकता है। तो दैट वाज द रीजन कि ना ये उधर का ना ये इधर का। तो अब आजिज क्या कर रहा है? आजिज ने नाम ले लिया जी विष्णु प्रसाद का, एक हिंदू ब्राह्मण बन गया और वो कोर्ट में से फायदा लेने आ गया। कोर्ट में केस क्या है कि किसी ने किसी हिंदू की जमीन ले ली। अब
उसको क्या वापस उसमें मिल रहा है? He has filed a case against Sultan Tughlaq for acquiring his land unfairly. Now he is given a handsome amount in the name of land acquisition. Later in his court, he invites the public to get settled in Daulatabad. He doesn't force the public, but leaves it to them whether to move or to remain there. अब आज़ाज़ ने क्या किया? वो भेस बदल के आया, जितने बेनिफिट्स उसने हिंदू के लिए अनाउंस किए थे वो सारे वो हिंदू बन के ले गया। उनको यही नहीं पता कि जिस बंदे को बेनिफिट मिलना चाहिए था उसको मिला कि नहीं, तो वो भेस बदल के आया, फायदे ले गया। इसके बाद जब ये दिल्ली टू दौलताबाद वाली अनाउंसमेंट होती है, तब अजीज और आजम क्या करते हैं, ये प्लान करते हैं कि ये लोगों को चीट करेंगे और उनसे पैसे लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, तो उसको कहेंगे हिंदू था कि मुस्लिम था तो दफनाना चाहिए था, उसके पैसे दो। और अगर हिंदू था तो उसको फ्यूनरल होना चाहिए था उसका, उसके पैसे। तो लोगों को बहुत लूट रहे हैं ये दोनों रास्ते में भी। ऐसे ही सीन शिफ्ट होता है। सीन जो है वो मेजर प्लॉट और माइनर प्लॉट पे जाएगा। तो सीन शिफ्ट होता है तुगलक पे, वो चेस खेल रहा है, उसकी स्टेप मदर आती है, वो बहुत कंसर्न्ड है कि कितने सेंट्रिक अप्रोच है उसकी, कितने ऊट-पटांग वो डिसीजंस ले रहा है। इट इज रिवील्ड दैट तुगलक हैज मर्डर्ड हिज फादर एंड हिज ब्रदर इन द पास्ट टू गेट टू द थ्रोन। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसने गलत किया है। शी स्कोल्ड्स हिम फॉर हिज नेग्लिजेंस and she even tells him that Ainul Mulk has now turned into an enemy. वो उसका friend होता था, who is marching with 30,000 soldiers to attack the state. और इसके पास कितने हैं? सिर्फ 6,000। और अब ये क्या प्लान करेगा? That is something very important. His stepmother asks Barani, a historian, to keep Tughlaq away from the company of foolish advisors and counselors. उसको लगता है कि कोई इसको गलत गुमराह कर रहा है, तो बरानी को बोल के जाती हैं इसकी मदर कि इसको दूर रखो थोड़ा, ये आम फालतू से लोगों से ना इतना मेल जोल रखे। So writing in 2012, M. Jagdeshwari ने क्या कहा है? Girish Karnad is the foremost playwright of modern India. Tughlaq is his second play. Tughlaq, his second play, is a historical play replete with symbolism. अब symbolism के नाम पे चाहे आपके पास chess आ जाए, very important question ये भी, because this is the play that was even prescribed in the previous syllabus. तो बड़े सारे questions हैं जो I can tell you. सिंबलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंबलिज्म में चेस एज अ सिंबल, जैसे लाइफ को आप चेस के साथ कंपेयर कर सकते हो। यू नो, लाइफ में गॉड के हाथ में सब कमांड होती है, यहाँ पे सुल्तान के हाथ में कमांड है। Aziz and Azam, they are anti-heroes, they are rogues, they stand for those parasites in society who don't do hard work, who do not believe in working hard, who only, thrive and flourish on some others' resources. Then prayer is such a ritualistic, spiritual and pious एक्टिविटी, बट यहाँ पे उसी प्रेयर की आड़ में लोगों के कत्ल हो रहे हैं, तो वो भी डिफाइल कर दी गई, वो भी करप्ट कर दी गई। देन पाइथन, दौलताबाद को एक पाइथन की तरह देखा जा रहा है जो सब कुछ निगल रहा है। देन रोजेस एंड बर्ड्स लाइक वल्चर। अब वल्चर कहाँ आती है? डेड बॉडीज के पास। तो ये सारी डेथ एंड डिके दिखा रही हैं चीजें। तो ये सारे सिंबल्स हैं। शेख इमामुद्दीन और ये जो और करेक्टर्स हैं, शेख इमामुद्दीन बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं। सुल्तान को ये पसंद नहीं है क्योंकि ये सब अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं और लोग इनको बड़ा पसंद करते हैं। अब इसके सामने दो दुश्मन हैं, शेख इमामुद्दीन एंड आइनुल मुल्क। अब ये क्या करता है? शेख इमामुद्दीन को अपने कपड़े से रॉयल कपड़े पहना के शाही एम्बेसडर बना के भेजेगा, और उधर जैसे ही शेख इमामुद्दीन आइनुल मुल्क के पास पहुंचेंगे, इधर से ये बिगुल बजा देंगे उसका, वॉर कराई दे देंगे, and ultimately he would be killed. So Tughlaq calls him and asks him to visit Ainul Mulk with the proposal of peace. Sheikh is asked to be dressed as a royal person and sent on an elephant. Tughlaq has done this with an intention. Later news comes that Sheikh Imamuddin is murdered. He was mistaken for Tughlaq by the enemies for his royal dress and riding on an elephant. So Ratan Singh reveals that it was Tughlaq's plot. So this incident is the first example of the dark side of his character, कि वो इतना गलत, इतना गंदा इंसान हो सकता है कि वो किसी को भी रास्ते से हटाने के लिए ये कर देगा। अब
इसके उल्ट क्या होता है, रतन सिंह, आमिर और सईद जो सारे प्लान करते हैं कि इसको मारा जाएगा, बट और वो सारे प्लान करते हैं कि इसको भी प्रेयर पे मारा जाए, बट उनका प्लान जो है वो पता चल जाता है और वो सारे पकड़े जाते हैं। और अब ये क्या करता है, ये उनमें से कुछ के सर कटवा के अपने महल के बाहर लटकवा देता है, और अपने बंदे को, मतलब इसके खुद के बंदे इसके एंटी हो जाते हैं, तो उनके लिए अनाउंस करा देता है कि दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ सुल्तान एंड द स्टेट। तो यहाँ भी मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी करके हर किसी को अपने रास्ते से बड़ी सफाई से हटा रहा है। तो उसके बाद वही बात आती है, वो जो डिसीजन इसने शुरू में लिया था उसका। So he declares that all that coins will have an equal value no matter whether the coin is made of gold, silver, copper or brass. So he also announces a ban on prayers. क्यों? क्योंकि इसने प्रेयर में ही अपने पेरेंट्स का कत्ल किया था, अपने फादर का और ब्रदर का, और अब यहाँ पे इसके ऊपर भी अटैक हो गया। तो इसको लग रहा है कि प्रेयर टाइम मुस्लिम्स दे आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी वेपन, बिल्कुल निहत्थे प्रेयर करते हैं जैसे करनी ही चाहिए। तो अब इसको डर है कि मेरे पे दोबारा अटैक ना हो जाए, एक बार मैं बच गया, तो ये प्रेयर पे ही बैन लगा देते हैं कि प्रेयर ही नहीं होगी, नमाज ही नहीं पढ़ी जाएगी। और लोग जो हैं वो दौलताबाद जा रहे हैं, दे आर डाइंग ऑफ हंगर एंड डिजीज। अजीज अपीयर्स विद हिज फ्रेंड आजम एंड टेल्स हाउ टू डिसीव अदर्स एंड एक्सट्रैक्ट मनी। तो इनका सिर्फ एक ही काम है कि पैसे कैसे ऐंठने हैं लोगों से। इधर इसका जो एडवाइजर है नाजिब, वो मारा जाता है, और इसकी मदर आती है, इसको बहुत डांटती है कि तू क्या फालतू के डिसीजंस ले रहा है, ये गलत लिया तूने सारे डिसीजंस। तुगलक नाजिब की मौत से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसको लग रहा है कि ये हुआ क्या, लेकिन ये पता चलता है कि नाजिब को मारने वाली इसकी खुद की मदर है। और जैसे ही इसको ये पता चलता है, ये अपनी ही मदर को, स्टेप मदर ही है, उसको ये उनको अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे देता है, और उसको बाद ये ऑर्डर देता है दैट शी शुड बी स्टोन्ड टू डेथ, उनको पत्थर मार मार के मार दिया जाना चाहिए। और घियासुद्दीन अनाउंस होता है यहाँ पे कि अब दौलताबाद में घियासुद्दीन अब्बासिद आ रहे हैं, और जो प्रेयर पे बैन है वो लिफ्ट हो जाएगा। बट द पीपल आर नो वे इंटरेस्टेड इन ऑल सच थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो इतने भूखे हैं, कहाँ से कहाँ उनको उखाड़ के एक ट्री की तरह, एक फलदार वृक्ष हो जिसको आप जड़ से उखाड़ के कहीं और ले जाओ तो क्या हालत होगी, वो ऐसे हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सेम बात हमने हंगर में भी पढ़ी है कि जब आपका पेट भूखा है तो आपको म्यूजिक भी अच्छा नहीं लगेगा, वो यही हो रहा है यहाँ पे। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुगलक प्रिपेयर कर रहा है गयासुद्दीन अब्बासिद के वेलकम के लिए, और अजीज एकदम से आता है। अब खुद सोचो, इतना बड़ा सुल्तान, उसको एक छोटा सा ठग इतना परेशान कर रहा है। अब क्या करता है अजीज, गयासुद्दीन अब्बासिद को मार देता है, उसके कपड़े पहन लेता है, अपने पास चिट्ठी और रिंग जो एक इंसिग्निया होता है उसकी पर्सनालिटी का वो ले लेता है, और सुल्तान के पास पहुंच जाता है। अजीज बड़े कॉन्फिडेंटली मैनेज करता है, सुल्तान को अपनी नई आइडेंटिटी के साथ मिलता है। आजम जो है इसका मर्डर हो जाता है जब ये सुरंग के रास्ते से शहर में घूमने जाते हैं, लेकिन समहाउ इसकी ट्रू आइडेंटिटी जो है वो तुगलक के सामने आ जाती है। अब इतना भी पागल नहीं है वो, तुगलक के सामने उसकी आइडेंटिटी आ जाती है, लेकिन अब हमें तो लग रहा है कि होगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन होता क्या है, अजीज जो है वो सब कुछ तुगलक को बता देता है। Now Aziz tells him everything, whatever he has done in the past to cheat him. This revelation of these facts really impresses सुल्तान। वो बड़ा खुश होता है, वो तो मतलब उसको चौई चढ़ जाता है कि अच्छा इतना क्राफ्टी है तू। He appoints him on a powerful position in his court, और सजा देने की बजाय उसको अपने कोर्ट में बड़ी अच्छी पावरफुल पोजीशन पे रख लेता है। Having taken this decision, Sultan goes to sleep. When he wakes up, he realizes as if he has gone mad. The play ends here. तो प्ले यहाँ पे ओपन एंडेड तरीके के साथ खत्म होता है, क्योंकि जितने साल भी मोहम्मद बिन तुगलक ने रूल किया, इस प्ले में सिर्फ वो 5 सालों को, ओनली दोज 5 years हैव बीन एडेड, जब इसने मेजर ड्रास्टिक से ये 2 डिसीजंस लिए थे, और इसके किंगडम का मतलब डाउनफॉल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल समा था वो ये 5 सालों का था। गुड रीड्स में कमेंट है
that Tughlaq, written by Girish Karnad in 1964, is his best loved play about an idealist 17th century Sultan of Delhi, Muhammad bin Tughlaq, and allegory on Nehruvian era. तो ये जो प्ले है ये नेहरूवियन एरा पे एक एलेगरी है. एलेगरी होती है अ स्टोरी विद डबल मीनिंग. ऊपर से तो हमें सिर्फ दिख रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक है, लेकिन ये हर उस शख्स को डिपिक्ट कर रहा है जो आइडलिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, बट एंड में सच्चाई सामने आ जाती है, उनका झूठ पकड़ा जाता है, जैसे इसके साथ हुआ. सो ही इज नॉट दैट गुड द वे ही पोजेस टू बी. नहीं तो शायद वो थ्रोन के लिए अपने फादर और अपने ब्रदर को ही नहीं मारता. So it's an existentialist play. This is open ended and most importantly historical play तो है ही है और symbolism भी बहुत important इसमें. That is all. I hope now this would be helpful in framing your answer, in making sense out of this कि पूरी स्टोरी में हो क्या रहा है. दो ही मेजर डिसीजंस हैं जो उसने लिए हैं और उसी के पीछे सारा जो प्ले है या उसका जो राजपाट है वो तहस नहस हो गया. That's it. All the very best. Take care. And if you are yet a new visitor to the channel, don't forget to subscribe to the channel. And pressing the bell is going to be beneficial for you because you will be notified whenever I'll upload a video. So don't forget to share the video with all your friends who are, even if not the student of literature, who are fond of listening to the historical stories. So take care. Bye for now.